Hello, my dear champions. My name is Naveen Kumar, and you are watching me. I hope you all are well and doing wonders only in your studies, not on other places. So, this is the part 4, and in this part, we are going to cover question number 4, question number 5, question number 6, question number 7. And now you are thinking that before that what you have completed in the part 1, part 2, part 3. So in the part 1 or part 2 we have completed complete basic of chapter 11, and in the part 3 we have completed question number 1, question number 2, question number 3 of our exercise 11.1. So before going to start our question 4, you have to read out this question very careful. So listen all of you. Okay? So what is in the part 4? In the part 4, a chord of a circle of radius 10 centimeter. We have given that a chord of a circle of radius 10 centimeter means we have a circle and we have a chord. And as you all know that chord means if a line segment which joins 2 points on the circumference of the circle, a lines which joins 2 points on the circumference of the circle, is known as chord. So listen. So this is our circle, and we have given that radius of this circle is 10 centimeter. Next, a right angle at the center, and center पर कितने डिग्री का एंगल है? 90 degree. Right angle means 90 degree. So just you have to be very careful that co-concepts. This is the center of the circle and this is the radius. Okay, and this is also a radius. Now it is saying that a right angle at the center पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? राइट एंगल. So right angle means this angle is right angle. Right angle means 90 degree. This is the center of this circle. And after that is saying as that a chord of a circle of radius 10 centimeter. कि ये chord है, क्या है? Chord. So we are able to see that there are 2 points on the circumference of this circle. If we will join both of them, then we can say that if we will join both of them, then this is the chord. और ये circle की क्या होगी? Chord होगी. क्या होगी? Chord. So we have a circle. Okay, so this is the chord of the circle, and radius of the circle is 10 centimeter. So what is in the next? That find the area of the corresponding. After that there is a minor segment, means you have to find out the area of the minor segment. And I told you in the last videos that minor segment is made up by the chord and corresponding length of arc, या corresponding arc. So it means minor segment means you have to find out the area which was covered by the chord and corresponding arc. So आपने बोला सर कि chord and corresponding arc, ये देखो सर ये chord and corresponding arc ये है सर, तो सर ये तो ऊपर वाला भी chord और corresponding arc होगी. But there is a completely written that minor segment means you have to find out the area of the minor segment. अगर आप ये chord और ऊपर वाला corresponding arc लोगे तो वो क्या बन जाएगा? Major segment. So we have to be very careful कि आपको जो area निकालना है वो किसका निकालना है? Minor segment का. So this is the minor segment that we have to find out. Okay, so I told you in the part 1 that area of the minor segment will be pi r square theta upon 360 degree minus half r square sine theta. So listen, what we have given in this question, we have to write here. So given that, what we have given that radius of this circle is 10 centimeter and angle at the center is 90 degree. So theta equals to 90 degree. Now we have to find out what we have to find out. So you have to write that we have to find out area of, in the part 1 you have to find out area of minor segment.
So I am giving names to these points. This is the point O, this is the point A, this is the point, sorry, A. This is the point A, this is the point B, and this is the point C. So you have to find out the area of the minor segment. So minor segment is ABC, ABC, and after that return वापस कहाँ पे आ जाओगे आप? A पे आ जाओगे. So you have to find out the area of the minor segment. So solution, area of minor segment, area of minor segment, area of minor segment equals to, फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है. सो देखो, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सेगमेंट. तो आप इससे सेगमेंट का क्या निकाल सकते हो? एरिया. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? देयर इज given you have that 3.14, you have to take the value of pi 3.14. So 3.14 into radius have 2 power, so we have to write radius 2 times. So 10 into 10 into theta. What is the value of the angle? Which is 90 degrees. So 90, and I told you in the last video that you have to write angle जो है एंगल के नीचे आपको 360 डिग्री लिखना है. तो ये 90 डिग्री हो गया, उससे के नीचे आपके लिख दो 360. So pi r square theta upon 360 minus half r square. What is the value of radius? 10. So we have 2 power. So we have to write it 2 times. So 10 into sine. And आगे क्या है? Theta means you have to write the angle again. So the angle is 90 degree. Is there any problem? No. So आपने बोला सर point के बाद कितने digits है? 2 digits. So you have to write in the denominator 100. कि आपने पॉइंट रिमूव कर दिया तो क्या लगाओगे? 100 लगाओगे. सर 0 से 0 कैंसिल, यस. 0 से 0 कैंसिल, यस. 0 से 0 कैंसिल, यस. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो. सो 2 2 जा 4, और इसको इससे करो 1 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, और 1 के आगे फिर से 1, इट मींस 11. तो 2 5 जा 10, वापस क्या बच गया 1, और 1 के आगे क्या है 4, तो 2 7 जा 14. नेक्स्ट, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1. सो जो साइन 90 की वैल्यू है वो भी क्या है? 1. सो यू हैव टू राइट हियर दैट 157 अपॉन 2 माइनस 10 10 जा, देखो 10 1 जा 10, तो साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो 10 1 जा 10, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100. सो यू हैव टू राइट 100 अपॉन 2. So what is the LCM of both? So you have to write 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, और इसको इससे डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 आई 1, 57 1 जा 57 माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 100 1 जा 100. सो 57 अपॉन 2, 57 अपॉन 2. अगर आप 57 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 और 8.5, and you have to find out the area, so you have to write the unit of the area. So आपके पास सेंटीमीटर था, तो so you have to write सेंटीमीटर स्क्वायर. So it is our answer of minor segment. It is our answer of minor segment. और ये आपका किसका आंसर आ गया? minor segment का. Now you have to find out the area of the major sector. Area of the major sector. So now we have to find out the area of major sector. चलो ये यहां पे देख लेते हैं. नाउ नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है? बोलो. आपको बताया भी था कि 2 फॉर्मूलेज लिखवाए थे आपको. द फर्स्ट वन इज कि एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर दो? एरिया ऑफ minor sector, but we don't have the minor sector, so you have to write the direct formula. So pi r square 360 minus theta upon 360 degree. आपको ऐसा कुछ लिखना है. So what is the value of pi? You have to write 3.14
into what is the value of radius? You know 10, and how many powers on the radius? 2. So you have to write it 2 times into 360 minus theta. Theta क्या है? 90. तो 360 में से 90 गया तो so there will be 270 upon 360. 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स. सो यू हैव टू राइट 100 इन द डिनोमिनेटर. जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं उतने ही आपको डिनोमिनेटर में क्या लगाने होते हैं? जीरोस. सो 0 कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट. नेक्स्ट 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, और इसको करोगे तो 157. सो 157 मल्टीप्लाइड बाई 3. तो देखो आप क्या आएगा? 3 7 जा 21, कैरी लग गई 2. ठीक है. 3 5 जा 15, 15 और 2 17, कैरी लग गई 1, एंड 3 1 जा 3 और 4, तो 471 अपॉन 2. सो डिवाइडेड बाई 2. नाउ यू विल गेट 2 को इससे डिवाइड किया 2, सो 2 3 एंड 11 को करोगे 5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. कोई दिक्कत है? और यही आपको क्या करना था? फाइंड आउट. सो दिस इज द पार्ट 2 इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. बोलो कोई दिक्कत लगी आपको? नहीं? पक्का? देखो इसमें लिखा हुआ अभी था कि अगर देखो 2 को 2 से डिवाइड किया, सॉरी 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 7 है, तो 7 को अगर आप 2 से करोगे तो 3, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1, और 1 के आगे फिर से 11 है, तो 2 5 जा 10.5. कोई दिक्कत नहीं है. सो मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन so what is in the next question? Before that we have to read out our question very carefully. So listen, in a circle of radius 21 centimeter, means we have a circle and radius of that circle is 21 centimeter, है ना? हाँ. So we have a circle and radius of that circle is 21 centimeter. After that it is saying that an arc subtends an angle of 60 degree. Means आपके पास एक आर्क है, वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का. So we are assuming that this is the arc which makes angle 60 degree at the center. और ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का. कहां पर? सेंटर पर. So this is the center. और ये सेंटर पर एंगल कितने डिग्री का बना रही है? एंगल बना रही है, वो बना रही है ये 60 डिग्री का ना, 60 डिग्री. नेक्स्ट what we have given? We have given that in a circle of radius 21 centimeter, कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है? 21 सेंटीमीटर. सो दिस इज द 21 सेंटीमीटर. दिस इज द 21 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इट इज सेइंग दैट इन अ you have to find out the length of the arc. आपको क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ द आर्क. मीन्स यहां से और यहां तक जो आपके पास ये आर्क है, इसकी आपको क्या बतानी है? लेंथ बतानी है. क्या बतानी है? लेंथ. सो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल O. दिस इज द पॉइंट A. दिस इज द पॉइंट B. दिस इज द पॉइंट C. सो यू हैव टू फाइंड आउट द आर्क ABC. Arc ABC. What we have given? We have to write before that. Given that. What we have given in this question? We have given that radius of this circle is 21 centimeter. So radius of this circle is 21 centimeter and angle subtends by the arc at the center is 60 degree. So theta equals to 60 degree. It is saying that find the length of the arc. Length of the arc. आपको क्या बताना है? Length of the arc find out करना है. And you know that length of the arc means ABC. इसकी बात हो रही है कि आपको इसकी क्या फाइंड आउट करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी लेंथ जो है वो क्या होगी. एंड यू नो वेरी वेल दैट व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क. सो इन द फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ द आर्क. लेंथ ऑफ द आर्क. सो द लेंथ ऑफ द आर्क इज पाई आर थीटा अपॉन 180. पाई आर थीटा अपॉन 180. अब बोले सर जरूरी तो ना सर यही लिखे ना, जरूरी तो नहीं. आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, बट दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म दैट आई राइट हियर. सो 2 को इससे कैंसिल करोगे तो 180 आ जाएगा ना. So what we have to take on the place of pi? We don't have given any value, so we have to take on the place of pi 22 upon 7.
So 22/7 into radius have only one power, so you have to write radius only one time, and the angle is 60 and above 180. So 0 से 0 cancel, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 3 से 3 क्या हो गया cancel. So the length of the arc is 22 centimeter. So what is this? This is the length of the arc. Length of the arc. Length of the arc means this is the ABC which is 22 सेंटीमीटर. क्या आपको बताना कि यहां से यहां तक जो ये आर्क है ये क्या है 22 सेंटीमीटर है. कितनी है 22 सेंटीमीटर है. सो इन द पार्ट 2 व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क. कि जो आर्क है वो जो भी सेक्टर बना रही है उसी का एरिया फाइंड आउट करना है. एंड यू नो वेरी वेल दैट आर्क मेड अ 60 degree angle at the center and the angle is less than 180 degrees. So it is self understood that you have to find out the area of minor sector. क्या फाइंड आउट करना है माइनर सेक्टर. कैसे पता लगा सर यहाँ पर तो माइनर और मेजर का नाम ही नहीं है. बिकॉज द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज 60 डिग्री और आपको पता है जब भी एंगल 180 से छोटा होता है सो इट इज सेल्फ अंडरस्टूड दैट यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, है ना. हाँ. So what we have to find out in the part 2? We have to find out in the part 2 area of minor sector. And you all know that area of minor sector have two formula. I told you in the part 1 that आप चाहो तो पाई r square theta upon 360 से भी निकाल सकते हो. And if you are willing then you can find out it by half into L into R. सर आपने ये क्यों लिखा? क्या इससे भी area of minor sector find out कर सकते हैं? हाँ, whenever we have given the length of arc and you know that length of arc we have already find out in the question number 1 which is 22 centimeter. तो सर क्या हम इससे और इससे निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा? Yes, your answer will be same. बोला सर प्रूफ करके दिखाओ. तो देख सकते हो आप दोनों से ही निकालोगे तो आंसर क्या आएगा सेम. तो अपन ही देख लेते हैं ना, आप तो पता नहीं देखोगे नहीं देखो. सो ऑन द प्लेस ऑफ पाई यू हैव टू राइट 22/7 into on the place of power you have to write 21 and how many powers that radius have 2, so you have to write 2 times 21 into 21 into on the place of theta you have to write 60 degree 60/360. Yes or no? Yes. So 7 3 जा 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36. बोला सर 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6. यस यू आर राइट. सो आपने बोला सर अभी ये भी कैंसिल हो रहा है. हाँ. सो 2 1 जा 2 और यहाँ पर करोगे तो 11. क्या आएगा 11. सो 11 जो है अगर आप उसको 21 से मल्टीप्लाई करोगे कि तो क्या आएगा 11 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्यों? क्योंकि ये क्या है एरिया. बोले सर क्या अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे तब भी सेम आएगा? यस योर आंसर विल बी सेम. बोला सर दिखाओ तो देखो. हाँ, हाफ इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ आर्क वी फाइंड आउट इन द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 22. सो ऑन द प्लेस ऑफ 20 L you have to write 22. What is its radius? Radius क्या है इसकी? जो रेडियस है वो है 21. So 21. So 2 1 जा 2 और इसको इससे करोगे तो 11. So 11 into 21 231. बोला सर ये तो easy है. Yes, this is very easy when you have given the length of arc and radius. तो जब भी आपको रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क गिवन होगी तो ये बहुत यूजफुल है. एंड मेरी तरफ से इस बार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 2026. आपको चाहे कोई एमसीक्यू मिले चाहे कोई बड़ा क्वेश्चन मिले, there will be a question from here. Okay, so we have to find out what we have to find out in the part 3. So area of the segment formed by the corresponding chord. ये जो कोड है और उसके द्वारा बनाया गया जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है. सर ये 2 पॉइंट्स है, अगर आप इनको ज्वाइन करवा दोगे तो सर ये कोड बन गई और कोड तो सर ये कोड और आर्क जो है ये इतना इतना एरिया बना रही है. तो सर इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. और सर पता किसे लगा माइनर है? बिकॉज इट इज सेइंग दैट एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरेस्पॉन्डिंग कोड. तो ये जो है ये क्या होगी इसकी कोड एंड दिस इज द कोरेस्पॉन्डिंग आर्क. तो कोरेस्पॉन्डिंग कोड और कोरेस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा कवर किया गया स्पेस जो है वो ही आपको फाइंड आउट करना है. और आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो बहुत बड़ा पोर्शन हो गया, so it means it is the major segment and this is the minor segment. So it means you have to find out the area of the minor segment, है ना. बोले सर पता कैसे लगता है? प्रैक्टिस मैक्स
पीपल, मैं परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, बेटर, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट इन द पार्ट 3, क्या है पार्ट 3 में, क्या फाइंड आउट करना है, पता लग गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो यू हैव टू राइट हियर, कलर चेंज कर लेते ताकि तीनों अलग अलग कलर से हो जाए। ओके, एरिया ऑफ, दिख नहीं रहा होगा ये शायद, मुझे थोड़ी विजिबिलिटी कम हो रही है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, आपने क्वेश्चन नंबर 4 ही सोल्व किया था माइनर सेगमेंट से रिलेटेड। सो इट्स एरिया इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके सर, डन, कोई दिक्कत है नहीं है। सो यू हैव टू राइट पाई की जगह 22/7 on the place of radius you have to write 21 two times, and on the place of theta 60/360 minus half 21 into 21 and theta की जगह 60, so sin 60। सर हाँ, so we have write all our complete values, now we have to solve it। आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सो आपने बोला सर 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। इज एनी डाउट? नो। नेक्स्ट सर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। यस, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यस, ओके, सो इसको इससे करोगे तो 2 1 जा 2 और यहां पर करोगे तो 11, तो आपके पास आ गया 11 इंटू 21 विच इज 231। सो आपने बोला सर 231, इसको तो अपने पहले सोल्व कर लिया था, माइनस हाफ, देखो 21 इंटू 21 441, सो 441 अपॉन 2 and what is the value of sin 60 degree, it is √3/2, so you have to write √3/2। कोई दिक्कत है? सो your answer will be 231 minus 441 √3/4 centimeter square, it is your area of minor segment। So we have completed our question number 4, question number 5, so we are going to move for the question number 6। So before going to question number 6, you have to read out this question very carefully। So listen, what we have given in the question number 6, a chord of a circle of radius 15 centimeter, there is a chord and you are now very well about that chord and minor arc or major arc made a segment, कि chord और जो arc है वो मिलकर क्या बनाते हैं, segment। So it means something is related to segment, आपको कोड दिखते ही पता लग जाना चाहिए कि समथिंग इज रिलेटेड टू सेगमेंट। नेक्स्ट, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड सबटेंस एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। सो वी हैव टू ड्रॉ अ फिगर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दैट देयर इज अ सर्कल, देयर इज अ सर्कल। सो आपने बोला सर सर्कल तो ड्रॉ कर दिया, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपके पास एक क्या है, कोड है, क्या है, कोड। सो दिस इज द कोड, और ये क्या होगी, कोड होगी, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, 60 डिग्री एट द सेंटर। सो वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल एट द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का। नाउ यहां पर बोला सर ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, मींस दिस इज द 15 सेंटीमीटर, दिस रेडियस इज आल्सो 15 सेंटीमीटर। Next, find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle, means in this question you have to find out both segments, कि आपके यहाँ जो है इधर तो क्या बन रहा है, देखो आर्क जो है ये आर्क हो गई, आपकी क्या होगी, कोड। सो दिस इज योर माइनर सेगमेंट एंड एक्सेप्ट दिस बच गया वो, यू हैव टू फाइंड आउट, देखो क्या फाइंड आउट करना है, माइनर और मेजर दोनों फाइंड आउट करने, मींस दिस इज द माइनर सेगमेंट एंड एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा जो बच गया दिस इज द मेजर सेगमेंट, और ये आपका क्या है, मेजर सेगमेंट। सो you know very well in the question number 4 or 5 we have already find out area of minor segment, so we are very well aware about that। So what is the formula of area of minor segment?
Okay, so you have to write what we have given that what we have given in this question. So you will say that radius is 15 centimeter and the angle which made at the center is 60 degree. Is there any doubt? No. So in the part 1 we are going to cover area of minor segment. area of minor segment area of minor segment क्या होगा आपको पता है? area of minor segment will be क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. आर स्क्वायर साइन थीटा. This is the formula to find out area of minor segment. Yes or no? Okay. So what is the value of pi? On the place of pi you have to take 3.14. So on the place of pi 3.14 and what is its radius? 15. So you have to write 15 two times. थोड़ा सा इसको लेफ्ट में ले लेते हैं. So अच्छा सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो पाई की जगह 3.14 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 60 अपॉन 360. कोई डाउट है? नहीं. नेक्स्ट माइनस हाफ इंटू रेडियस वही 15. सो 15 इंटू 15 एंड साइन and angle will be 60. Angle will be 60. So what will be the value of sin 60? You say that √3/2. Okay. So आपने बोला सर अपन चाहे तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं. यस. अब अगर आप चाहते हो तो यहाँ से कुछ कॉमन भी ले सकते हो और अगर आप नहीं चाहते तो लेने की जरूरत नहीं है. सो पॉइंट के नीचे कितने डिजिट है? 2. सो अगर आप पॉइंट आप हटाओगे तो जितने डिजिट होते हैं डिनोमिनेटर में 1 के साथ उतने ही जीरोस लग जाएंगे. सो 0 से 0 कैंसिल आउट. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36. कोई डाउट है? नहीं है. नेक्स्ट. तो आपने बोला सर 3 2 जा 6. हाँ सही है. 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. पक्का. नेक्स्ट आपने बोला सर 2 1 जा 2 और इसको करोगे तो 157. कोई डाउट नहीं है? पक्का. ओके देन. सो 157 5 जा. तो आपने बोला सर आगे वाले को सोल्व क्यों नहीं किया? है ना, ऐसे मन में आ रहा होगा. तो एक बार देखते हैं ना. आप चाहो तो आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते थे कि सर 5 1 जा 5 और यहाँ पर कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा? 20. बिकॉज 25 जा 100. नेक्स्ट आप चाहो तो और कैंसिल आउट कर सकते हो. कैसे? कि 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15. तो आपने बोला सर 157 3 जा. अभी थोड़ी देर पहले अपने निकाला था, याद है क्या? कुछ नहीं है तो देखो 3 7 जा 21 कैरी लग गई 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 17 कैरी लग गई 1, 3 1 जा 3 और 3 और 1 4. सो 471 अपॉन 4 माइनस हाफ की जगह हाफ. 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 225 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2. कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट आपने बोला सर तो 471 अपॉन 4 माइनस 225 अपॉन 4 और आप चाहो तो इस √3 की वैल्यू क्या कंसिडर कर लो? 1.73. और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? माइनर सेगमेंट. क्या आएगा? माइनर सेगमेंट. तो करते हैं, देखो इसको हटा दो क्या लग जाएगा? 100. है ना. ओके. फिर 5 को इससे करोगे 20 और 5 को इससे भी करोगे तो क्या आएगा? तो 5 4 जा 20 और 25 तो 45. फिर से एक बार 5 से कर लो तो क्या आएगा? 5 4 जा 20 और इसको 5 से करोगे तो क्या आएगा? बोलो. हाँ 9. ठीक है. सो आपके पास क्या आ गया? इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए आप तो 471 अपॉन 4 माइनस 173 को आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए. 9 3 जा 20, 7 कैरी लग गई 2, 9 7 जा 63, 63 और 2 65 तो 5 कैरी लग गई 6, 9 1 जा 9, 9 और 6 15 अपॉन 4 4 जा 16. और अब आप इसका क्या ले लिए? एलसीएम ले लीजिए कि 16 इसका क्या आ गया? एलसीएम 16 डिवाइडेड बाई 4 विल बी 4 और 16 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 4. 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो. इसको मल्टीप्लाई करो 4 से. 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 कैरी लग गई 2 और 4 4 जा 16 और 2 18 माइनस 1557. ठीक है. अपॉन 16. इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं.
ओके, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, देखो 1884 में से आपको क्या माइनस करना है, 1557, तो 14 में से 7 गया 7, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 5 गया 3, सो 327/16, तो क्या आ गया आपके पास, 16 2 जा 32, तो 2 आ गया। अब डिवाइड नहीं होगा तो आप 0 ले लो, फिर बच गया 7, 7 के आगे फिर से क्या लगा दीजिए आप 0, सो 16 4 जा 64, अब बच गया 6, 6 के आगे फिर से क्या लगा दीजिए 0, तो 16 3 जा, ऐसा कुछ आपके पास क्या आ गया आपका आंसर। सो 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, बट यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑल्सो। मेजर सेगमेंट, क्या मेजर सेगमेंट भी निकालना है। सो यू आर वेरी वेल नो, यू आर अवेयर अबाउट दैट एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना। So area of a major segment will be area of a major segment. Area of major segment मैंने आपको बताया भी था कि आप कैसे निकालोगे एरिया ऑफ सर्कल। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आपने बोला सर पाई की जगह तो आपको क्या कंसिडर करना है, 3.14, सो 3.14 इनटू रेडियस की जगह क्या कंसीडर करना है, विच इज 15, सो हाउ मेनी पावर्स ऑन द रेडियस 15, सो 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी आपके पास क्या आया 20.43, सो आपने बोला सर पॉइंट हटाओगे क्या लग जाएगा 100, सो 5 से इसको करोगे 20 और 5 3 जा 15, 5 को इसको करोगे 4 और ये आएगा 3, आएगा कि नहीं आएगा। और देखो 2 2 जा 4 और यहाँ पर करोगे तो 157, 157 को 3 3 जा 9, 157 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए 9 से, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 153 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 157 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 471 आएगा, और 471 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 471, और 471 को किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, तो क्या आएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, कैरी लग गई 2, 3 1 जा 3, 4 7 जा 21, कैरी लग गई 2, 4 3 जा 12 है, 12 और 2 14 अपॉन 2 माइनस 20.43, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, कोई नहीं। सो देखो 2 को इससे करो 2 7 जा 14, तो आपने बोला सर 2 7 जा 14, ठीक है 2 7 जा 14, फिर आपके पास 0 और ये 13, तो 2 6 जा 12 है, 0.5 माइनस 20.43, और अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, कीजिए आप माइनस 706.5 और इसमें से माइनस करना आपको 20.43, तो आपने बोला सर यहाँ 7 यहाँ 0 पॉइंट, ये आपके पास 6 और ये आपके पास 10 में से 2 गया 8 और 6, तो आपके पास आ गया 686.07 centimeter square. It is your desired answer that you have to find out in our question number 6th, area of major segment. So I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अभी भी कहीं आपको लग रहा है कि कुछ डाउट है, कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत है, तो आप एक बार फिर से कमेंट करोगे या फिर एक बार कमेंट करोगे तो हम इसी पार्ट को एक बार फिर से अपलोड कर सकते हैं आपके लिए। हाँ, बिकॉज वी केयर फॉर यू, है ना, हमें आपकी बहुत चिंता है। योर बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग नियर, सो बहुत पास आ गई हैं, तो आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। एंड शो योर लव बाय लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।